हुजूर जो हमारा ज़िंदा खुदावंद है, हम सब आते हैं, अपने गुनाहों, गलतियों, कसूरों की माफ़ी माँगते हैं, अपने दिलों को पाक साफ़ करते हैं ताकि हम खुदावंद की हुज़ूरी में पूरे सच्चे दिल से, ईमान से उसके आगे आएँ और जो कुछ भी हम माँगे और जो कुछ भी आज खुदावंद हमसे बात करे, हम उसकी तालीम पे आमीन कहें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि रूह और दुल्हन कहती है आ। कुदूस 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 आसमान और ज़मीन को बनाने वाले ज़िंदा खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी हुज़ूरी में आए। खुदा आपने मौका दिया कि एकदा आप एकदा कलाम के सच्चे भेद, कलाम की सच्चाइयाँ एकदा हम पे एकदा ज़ाहिर कर रहे हैं, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ऐ खुदावंद, आपके इस कलाम के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए, इस खूबसूरत वादे के लिए शुक्र करते हैं कि ऐ खुदा, ये सच्चा कलाम जो एकदा हम अपने अंदर लेते हैं, अपने दिलों में लेते हैं, एकदा उस पे अमल करने की कोशिश करते हैं, खुदा ये हमें हर तरह से आज़ाद करेगी, हर बंधन से आज़ाद करेगी, एकदा हमारे बंधन तोड़ेगी, हमारे खानदानों के बंधन तोड़ेगी एकदा, और सही सलामत एकदा हमें उस कनान में, मुल्के कनान में एकदा जो हमारे वादे की सरजमीन है एकदा उसमें पहुंचा देगी। एकदा आपका शुक्र करते हैं खुदा, एकदा अपनी खादमा पे एकदा आपका खास मसा चाहते हैं खुदा, एकदा जो कुछ भी बोले वो पाक रूह की हिदायत से बोले एकदा, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि आपके खादम जो है वो पाक रूह की हिदायत से बोलते हैं खुदा, और एकदा 100 गुना एकदा फल लाने वाले हो खुदा। ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा जो मसीह के वसीले से, आमीन। ए खुदाउन, आसमान में तेरी शफकत है, तेरी वफादारी अफलाक तक बुलंद है, तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानित है, तेरे अहकाम नहायत अमीक हैं। आमीन। हम अपनी फर्स्ट वर्शिप जो है वो आंटी महेंद्र के साथ मिलके करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा मदद करनी, सहायता करनी प्रभु, तेरे कदमां च बैठण दा मौका ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਚੁੱਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭु। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪ੍ਰਭु, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭु, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭु, तेरी तारीफ, तेरी महिमा प्रभु, तेरा ਜਲਾਲ ਕੰਮ करे, तेरी पवित्र आत्मा ਕੰਮ करे, ਜੋ ਭਜਨ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਪ੍ਰਭु ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੇਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੇਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰੋਦੀ ਖਾਏਂਗਾ। ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ, ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪ ਸਵਾਰੇਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਿਲਾਰੇਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਿਲਾਰੇਂਗਾ। ਨਾ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁਕੂੰਗਾ, ਨਾ ਮਟਕੀ ਚੋਂ ਆਟਾ। ਨਾ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁਕੂੰਗਾ, ਨਾ ਮਟਕੀ ਚੋਂ ਆਟਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਪਊਂਗਾ ਘਾਟਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਪਊਂਗਾ ਘਾਟਾ। ਤੇਰੇ ਸਭੇ ਕਾਰਜ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਸਭੇ ਕਾਰਜ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪ ਸਵਾਰੇਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਿਲਾਰੇਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਿਲਾਰੇਂਗਾ। ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢੇਂਗਾ, ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢੇਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਦਰਿਏ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਦਰਿਏ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਰੂੰਗਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪ ਬਚਾਏਂਗਾ।
ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੇਂਗਾ। ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਰਡ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਨਾਮ ਸਗੀ ਕੌਡੀ ਦੀ ਨਾ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਨਾਮ ਸਗੀ ਕੌਡੀ ਦੀ ਨਾ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਤੋਂ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਹੋਈ ਨੀ ਮੇਰੇ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਤੋਂ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਸ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਖਾਂ। ਇਸ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਖਾਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਗਵਾਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾਮਣ, ਗੂੰਗੇ ਜਾਮਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾਮਣ, ਗੂੰਗੇ ਜਾਮਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਮਣ, ਲੂਲੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਮਣ, ਲੂਲੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਅਮਨ ਆਵਾਜ਼ੋਂ ਕੋਡੀ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੋਆ ਕੀਤੀ। ਅਮਨ ਆਵਾਜ਼ੋਂ ਕੋਡੀ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਖਾਂ ਵਰੀਤੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਖਾਂ ਵਨੀਤੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੇ ਸਪਾਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਰਡ ਜੈਮਸੀ की जी। प्रेज द लॉर्ड। इंसान की रफ्शें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। आमीन। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अमनदीप के साथ मिलके करेंगे। सिस्टर अमनदीप, आप इधर ही हैं? हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे।
ਜਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਬਲ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਏ, ਤੇ ਚਟਾਨ ਯਹੋਵਾ ਏ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਵੇ। ਜਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਖੁਦਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਕਦੀ ਛਲ ਨਾ ਕਪਟ ਆਵੇ। ਸੋਟੀ ਲਾਠੀ ਵਾਲੀ ਤਾੜ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਮੰਡ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਜਸੂ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਂ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਵੇ। ਜਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੈਥੋਂ ਕੁਝ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਖਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਏ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਵੇ। ਜਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਬਲ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਏ, ਤੇ ਚਟਾਨ ਯਹੋਵਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਏ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਵੇ। ਜਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अपनी राह खुदाउन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। खुदाउन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन। हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो निदा के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। रब अयाली मेरे को, मेरे दिल नो नहीं डोर। रब अयाली मेरे को, मेरे दिल नो नहीं डोर। कदी ना होवेगी तुड़ मैनू, रब जो मेरा याली है। कदी ना होवेगी तुड़ मैनू, रब जो मेरा याली है। हरी हरी गाते मैनू बहाल, मीठे पानी को। रब अयाली मेरे को, मेरे दिल नो नहीं डोर।
जान नू आप खुदावंद मुड़ के जवावेगा मेरी जान नू आप खुदावंद मुड़ के जवावेगा अपने ना देखा तेरे मैनू लेंदा सच्चाई को रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं डोर मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां खौफ बलावा दा ना हरगिज़ होवेगा मेरे को रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं डोर तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल क्यों जो दो तू खुदावंद होवेगा मेरे को रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं डोर दुश्मन अगे मेरे वास्ते रब वछांदा में दुश्मन अगे मेरे वास्ते रब वछांदा में तेल भी मेरे सिर दे उते ओ देंदा डोर रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं डोर रहमत मेरे सारी उम्र रहन गिया मेरे को रहमत मेरे सारी उम्र रहन गिया मेरे को मैं यहोवा दे घर सदा रहांगा ओदे को रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं डोर आमीन। तेरे खुदा ने तेरी पायदारी का हुक्म दिया है। ऐ खुदा, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे पायदारी बख्श। तेरी हैकल के सबब से जो यरूशलेम में है, बादशाह तेरे पास हदिये लाएंगे। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम खुदावंद के हुजूर हाजिर हुए, उसके हुजूर हमने अपने अपने हदिये गुजराने। अब मैं सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि रोटी और पानी के लिए और कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद का मसा हमेशा आपके ऊपर ठहरा रहे। खुदावंद अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से आपको इस्तेमाल करता रहे बाबा, और खुदावंद की 7 रूहें आपकी जिंदगी में काम करें और वो आपको खुदावंद यीशु मसीह की मानद बना दें, और ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब आए अपनी दुल्हन को लेने तो या तैयार हों। खुदावंद के जोर से उसकी ताकत से हमेशा दुश्मन की फौजों पे आप फतह पे फतह हासिल करती रहें, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम जिन्होंने प्रस्तिश की उन सब के लिए भी खुदावंद की हुजूरी में आते हैं कि जो भी खुदावंद तेरे बच्चों ने तेरी हुजूरी में तेरे कदमों में खुदावंद अपने हदिये नजराने रखे हैं, खुदावंद इनकी झोलियों को भर देना। खुदावंद ये खाली हाथ ना जाए, जो भी जहां भी इनको कोई जरूरत है खुदावंद जिस्मानी शिफा की, रूहानी शिफा की, यीशु के नाम से अपने आसमान के दरीचों को खोल के खुदावंद अपने तख्त से खुदावंद अपने बंदों की अपने बच्चों की खुदावंद सारी जरूरतों को पूरा करना। खुदावंद नया जोर नई ताकत देना, ताकि दुश्मन के हर वार पे खुदावंद यीशु तेरे जोर से तेरे नाम से फतह पे
पे फतह हासिल करते जाएं। और खुदाम यीशु जब तू आए तो तेरी दुल्हन खुदाम खुदा तेरी दुल्हन की मानद ये तैयार हो, यीशु के नाम से। हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप सब जो सनिया का बेटा है सुलेमान, उसको प्रेयर में रखें। इस वक्त उसको बहुत ही तेज बुखार है और और भी मेरे ख्याल पेट में प्रॉब्लम है शायद सनिया, है ना? तो अब ज़रूर उस बच्चे को अ, जब मैं दुआ करूँ आप मेरे साथ ज़रूर एक जैसे रूम में हम बंद जाएँ, क्योंकि उसका ईमान है कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह मुझे शिफ़ा देगा। वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहा, तो इसलिए आप ज़रूर एक बोझ लेके उस बच्चे के लिए प्रेयर में ठहरें। Hallelujah. Shikriya Katriya Rebesia Raba Shikriya Katriya Raba Sia Raba Shiara. Ore Shere Ketria Katria 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 Raba Shere Bere Bere Bere. Ore Shikriya Katria Katria Katria. Hallelujah. 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 Shere Bere 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 Shera Bara Kasria Katria. Hallelujah. Hallelujah. Re Shere Katra 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 Katra. थैंक यू जीसस। खुदा मैं सुलेमान को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदा अपने बच्चे को छू, खुदा तेरे हीलिंग वाले फरिश्ते उसके चगिर्द मांगती हूँ यीशु के नाम से टच कर। खुदा तेरा छू जाना खुदा यीशु के नाम से उसके लिए शिफा का बायस बने। खुदा यीशु के नाम से जहां तू आ जाता है वहां बदी की कुव्वतें ठहर नहीं सकती। खुदा मैं इस तब की स्पिरिट को यीशु के नाम से उसके बदन के अंदर से ऊपर से उतर जाने का हुक्म देती हूँ। यीशु के नाम से तेरा बेटा मुकम्मल शिफा पाए खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा इस घर के एक एक चीज पे एक एक इंच पे खुदा यीशु तेरे लहू में तेरे लहू को लगा देती हूँ, तेरे शिफा बख्श लहू को लगा देती हूँ। जो भी बदी की कुव्वतें नापाक रूहें उस घर में काम कर रही हैं खुदा, जो तेरे बच्चों को दुख देना चाहती हैं, जो तेरे बच्चों को ईमान में कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, यीशु के नाम से खुदा मैं सनिया के और विकी के लिए खुदा तुझसे मिन्नत करती हूँ कि अपने बच्चों को खुदा शुक्रगुजारी का मौका दे। खुदा उनकी जिंदगी में ये गवाही बने कि खुदा तूने उनके बेटे को शिफा दी है। यीशु के नाम से विक्की के ईमान को बढ़ा खुदा वो तुझ में और ज्यादा मजबूत हो, गहरा हो। खुदा सनिया को खुदा तू ईमान में और ज्यादा बढ़ा खुदा यीशु के नाम से, ताकि खुदा ये पूरी फैमिली मिलकर खुदा उस ईमान उस पाक तरीन ईमान पे खड़ी हो खुदा यीशु के नाम से, जिसके लिए तूने कहा कि वो पाक तरीन ईमान हमारी अंदर होना चाहिए जो दुल्हन के लिए जरूरी है। यीशु के नाम से खुदा तो सनिया के विकी के सुलेमान के मोजिस के खुदा ईमान को बढ़ाने के लिए यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में मौजज़ा कर, जलाली काम कर खुदा, करामात कर इनकी जिंदगी में खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा उस घर की एक एक चीज के ऊपर खुदा तेरा गहरा मजा, तेरी गहरी हसूरी ठहरी रहे। और खुदा सुलेमान को खुदा यीशु जहाँ पे उसके बेड को, उसकी चीज़ों को खुदा उसकी सारी खाने-पीने की चीज़ों को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। कोई भी जो कुछ भी वो खाए खुदा वो शिफ़ा का बाइस बने, खुदा वो ताकत का बाइस बने खुदा, ताकि वो जो ताकत हासिल करे खुदा यीशु वो तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए खुदा इस्तेमाल करे। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से माँगते और पा लेते हैं। आमीन। हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो खुदाम इस रोटी के लिए, इस पानी के लिए खुदाम जो कि खुदाम तेरा लहू है और खुदाम तेरा बदन है। खुदाम जब हम इसको लें तो इससे जो ताकत और ज़ोर हासिल करें खुदा वो तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए वो ताकत जो है इस्तेमाल हो, हमारे बदन जो है वो तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदा यीशु के नाम से हमारे बदनों के अंदर से सारी बीमारी, सारी गंदगी, नापाकी खुदा जो भी इब्लीस का असर है हमारे बदन के अंदर से, जिस्म के एक-एक अज़ा के अंदर से, हर एक साँस जो हम लेते हैं खुदा
से खुदावंद इब्लीस का सारा असर खत्म हो जाए खुदावंद खुदा, और हम तेरे लोग खुदावंद खुदा तुझ में शिफा को रिसीव कहीं, कहीं कोई रूहानी तौर पे कमजोरी है, कहीं हम बीमारी तौर पे कमजोर हैं, खुदा तेरे जोर में बदल जाए। जब हम इस पानी को लें, जब हम इस बदन को लें, इस रोटी को लें, तो खुदा हमारे अंदर से सारी बीमारियां, सारे खुदा शैतान के जो लानती बीमारियां हैं, लानते हैं जो हमारे खिलाफ उसने लिखा है, पढ़ा है, कोई जादू टोना किया है, कोई तवीज धागा किया है, यस्सु तेरे नाम से खुदा वो खत्म हो जाए। और जैसे जैसे हम पानी इसको पिए जो कि तेरे लहू में तब्दील हो गया, हमारे जहां जहां से ये गुजरे खुदा वहां पे वो सफाई होती जाए, वहां से खुदा बदी की कुव्वतें खुदा खत्म हो जाए, उनका नामो निशान हमारे बदन के अंदर से, जिस्म के एक एक अज़ा से खत्म हो जाए यस्सु के नाम से खुदा। और इस रोटी को जब लें तो हमारे कोई भी बदनी कमजोरी है खुदा यस्सु के नाम से हम शिफा पाए, यस्सु मसीह नासरी के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आप ईमान से लें। आप आमीन। ईमान से जरूर पानी और रोटी का एक नवाला जो है वो रखा करें। हमने अगले वीक या कुछ जब मेरा ख्याल जिन दिनों हम रोजे रखेंगे तो हम ये जो हम लेते हैं, यानी एक किस्म का कह लें, हम जब फसा मनाते हैं या खुदाउन के साथ जो हमारी शराकत है, तो इससे बीमारियां जो हैं इसको आप एक मेडिसिन की तरह लिया करें। जो भी आप दवाई लेते हैं, आप एक नवाला रोटी का या जब पानी है वो लें, तो आप खुद जैसे कह लें, बड़ी मैंने गवाहियां सुनी हैं कि खुदावन ने उनको गाइड किया कि वो रोज ही ये जो खुदाम यीशु मसीह का बदन है और लहू जो है वो लें, और उन्होंने कैंसर से उनको शिफा मिली। और ऐसी बहुत सी मैंने गवाहियां सुनी हैं कि उनको शिफा मिली, और उन्होंने एज ए मेडिसन, एक गोली की तरह, कैप्सूल की तरह इसको लेना शुरू किया, और अपनी जो वो दवाई लेते थे वो उन्होंने छोड़ के ये लेना शुरू किया। और खुदावन जो है हमारा जिंदा खुदा, वो कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जब मैं प्रेयर कर रही थी तो सनिया है हमारे साथ, खुदा ने कहा ये मेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए है, और बेटा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसलिए खुदा का शुक्र हो। सुलेमान, हाँ जी, सुलेमान देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और भाभी जी उसका ईमान ऐसा है कि मैं अभी आपको पिक्चर पर मस्बे के आगे आके लेट गया है, वो जो मैट Praise बिछाया है बेड से उठ के आके उसके आगे लेट गया जब आप प्रेयर कर रहे थे, खुद ही उठ के अभी भी उधर ही लेटा है। और मैं इसके लिए praise खुदा का God, इज्जत और जलाल देती कि खुदावंद ही इसे शिफा देगा, और खुदा बिल्कुल ने दे बिल्कुल। दी है। मैं इसके लिए खुदा का हालेलुया, शुक्र करती हूँ। प्रेज गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड जी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है, और हम सब के ईमान को बढ़ाए। जो भी कुछ होता है हमारी जिंदगी में, वो असल में खुदावंद, जैसे मैं कहूँ यूब की जिंदगी में वो उसने परमिशन दी थी, तब वो उसने टच किया था, वैसे वो हमारे बदनों को छू नहीं सकता। हालेलुया। हम यीशु के खून में छुपे हुए हैं, लेकिन खुदावंद हमारे जैसे कह लें ईमान को बढ़ाने के लिए अ, ऐसे कई दफा आजमाइशों में अपने नाम को इज्जत जलाल देने के लिए ऐसे कई दफा हम हालात में से गुजरते हैं, लेकिन खुदावंद हमारे साथ है, हमारा मजबूत किला, हमारी चटान, हमारे छुपने की जगह। प्रेज गॉड। आज हम सीखेंगे, मेरा पहले तो ज़हन में था कि हम मंडे को करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी वर्शिप कल हो गई थी, तो आज फिर हम अ, इसको सीखते हैं कि जो राख का बुध है, ऐश वेडनेसडे, और जिसको लेंट भी कहते हैं, लेंट का सीजन, तो उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, या रिवीजन हो जाएगी, है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि
जो भी जितनी भी स्टडी मैंने कहा इससे पहले हमने ली हुई है, एक तो हम बाइबल कल स्टडी करते हैं, उसमें से जो भी हमारा बुक है वो शुरू की है या पढ़ते हैं, है ना। तो जो इसके अलावा हमने स्टडी ली हुई है वो अ, वो बाइबल का कह लें कि प्रूफ है। और आपने देखा होगा कि कभी भी मैं किसी एक आयत को लेके उस पे बात नहीं करती, उसको साबित करने के लिए और भी नए अहदनामे से, पुराने अहदनामे से जैसे कह लें खुदावंद खुद ही सबूत देता है, साबित करता है कि उसका कलाम जो है ये जो हम सीख रहे हैं वो सच्चा है। तो इसलिए आज भी जो है स्टडी हम सीखेंगे, इसका जो एक हिंट है वो बाइबल से मिलता है, लेकिन इसकी डिटेल जो आगे है वो बाइबल हमें नहीं बताती। लेकिन जो हिंट मिलता है, जो एक कैसे कह लें सबूत मिलता है, प्रूफ मिलता है, वो जो उसके मीनिंग है, उस बेस पे कह लें कि बाहर से जो कुछ मिला, क्योंकि हमें कलाम में ही मिलता है कि बाइबल जो है, अगर हम इसकी एक-एक बात जो हुई थी, जो पुराने अहदनामे में कह लें या नए अहदनामे में जो खुदा यीशु मसीह के मौत से हुए थे, तो लिखा हुआ है, मुझे वो याद नहीं है कहाँ लिखा है, लेकिन लिखा है कि अगर वो सब कुछ लिखते, तो मेरा ख्याल पूरी दुनिया की जो कह लें हैं कागज़ खत्म हो जाते कि इतनी गवाहियाँ, इतना कुछ था लिखने के लिए, लेकिन वो नहीं लिखा गया, कि सिर्फ़ हमें एक समझाने के लिए या हमारी निजात के लिए या हमें उस मुल्क कनान में या न्यू यरूशलेम में जाने के लिए जो ज़रूरी बातें थी, कह लें वो खुदावंद पाक रूह ने इस कलाम में से हमें मिलता है कि अगर हम उतना ही सीख लें या उसी पे अमल कर लें तो हम उस कह लें पाक दामन का मारी की मानी जो है वो तैयार हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए लेकिन कुछ बातें सीखने के लिए थोड़ा-सा हम जो हिस्ट्री है उसमें से भी देख लेते हैं, या कुछ ऐसे हैं बातें जैसे पुराना अहदनामा कह लें कि कुछ जो डिटेल है वो यहूदियों की किताबों में मिलती है, लेकिन वो बाइबल में नहीं है ना? तो लेकिन इसका मतलब है कि अगर वो यहूदियों के पास भी उसका प्रूफ है, सबूत है या हिस्ट्री की किताबों में भी, तो वो कह लें कि वो हम मान सकते हैं, क्योंकि बाइबल उसके बारे में जो बताती है, जैसे आज जिसके बारे में हम सीखेंगे तमूज और नमरूद या उसकी बीवी या उसकी माँ कह लें, उसका ज़िक्र हमें काफ़ी जगह बाइबल में मिलता है ना? तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो कुछ भी मैंने थोड़ा-सा कोशिश की है, अपनी जैसे कह लें क नॉलेज के हिसाब से या अपनी जितना क मुझे जैसे कि मैं इतनी कोई पढ़ी-लिखी या कोई बाइबल कॉलेज या कुछ नहीं है, लेकिन जैसे खुदावंद पाक रूह ने मुझे गाइड किया और मैंने जो एक सच है या सच्चाई है, उसको थोड़ा-सा खोलने की कोशिश की है, और मेरा ईमान है कि आप सबको बरकत मिलेगी और आप जहाँ कहीं बंधनों में बंधे हुए हैं, वो खुलेंगे, क्योंकि हम अनजाने में बहुत से ऐसे काम जो हैं वो किए हुए हैं और हमें नहीं पता होता कि हमें ये करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, है ना? तो इसलिए खुदावंद आज आपको आज़ाद करेगा। इसमें कौन है हमारे साथ रीडिंग में? सिस्टर अंजना करेंगी और मैं। अ, ओके ठीक है। आप निकाल के रखना पैदाइश 10 बाब, क्योंकि वहाँ पे ही हमें सबूत जो है वो मिलता है, जो आज हम स्टडी लेने लगे हैं। तो इसलिए बाइबल बेस्ड है, अ, कोई स्टोरियाँ नहीं है। ठीक वर्स है। कौन सी? चैप्टर 10 वर्स। हाँ जी। जहाँ ये इसका ज़िक्र मिलता है, हाँ जी, 10 आयत से 9 और 10 आयत से जहाँ नमरूद का ज़िक्र मिलता है। 8 आयत में भी, और कूश से नमरूद पैदा हुआ और रूह जमीन पर एक चलिए तूफान। ठीक है।
बल्कि आप ना 6 से ही पढ़ें ताकि सबको पता हो कि असल में ये नूह का बेटा है। नोहा, नूह जो कह लें जब सैलाब आया, वो क्या कहते हैं, आया था, तो नूह जिसने किश्ती बनाई थी ये उसका बेटा है, छोटा वाला, जिसको इसने लानत की थी। क्योंकि जब नूह उसने वो मैं पी के तो नशे में था और वो नंगा हो गया था, तो छोटा ये वाला जो बेटा था हाम, वो अपने बाप पे हंसा था, है ना, तो बाप ने उसको लानत की थी। तो असल में हम कह लें कि ये वो जो लानती बेटा था ये उसकी औलाद है, या उसका ये पोता है जो नमरूद है। जी आप पढ़ना अ, वफा और पैदाइश की किताब उसका 10 बाब उसकी 6 आयत से। और बनी हाम ये हैं कूश और मिस्र और फूत और कनान। और बनी कूश ये हैं सबा और हवेलिया, हिवला और सब्ता और रमाया और सबकिया। और बनी रमाया ये हैं सबा और दान। और कूश से नमरूद पैदा हुआ, वो रूहे जमीन पर एक सूरमा हुआ है। खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है। इसलिए ये मिसल चली कि खुदावंद के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा। और उसकी बादशाही की अब इब्तदा मुल्क सनार में बाबल और अराक और अकाद और कलना से हुई। उसी मुल्क से निकलकर वो असूर में आया और नैनवा और रहूबत और ईर और कला को, और नैनवा और कला के दरमियान रसन को जो बड़ा शहर है बनाया। और मिस्र से लूदी और अनामी और लहाबी और नफोती और फतरोसी और कलसोही जिनसे फलिस्ती निकले और कफ्तूरी पैदा हुए। और कनान से सैदा जो उसका पहलौठा था, और हत। और 10 ये मेरा हाथ। हाँ। ओके। यानी हमें ये मिलना है कि जी अंजना आप भी निकालना है ना, कि एक कि ये बाइबल से हमें मिलता है कि ये कहाँ से। हाँ हाँ जी बाजी पढ़ू अभी। हाँ जी 6 अच्छे। ਹਾਮ ਦੇ पैदाइश 10 ਪੁੱਤਰ बा। ਕੂਸ਼ हाँ जी ਹਾਂਜੀ पढ़ो। ਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੂਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਸਰਾਈਮ ਦੇ ਪੂਟ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਸਨ। ਕੂਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਬਾ ਅਤੇ ਹਵੀਲਾ ਅਤੇ ਸਬਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਸਬਤਕਾ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਬਾ ਤੇ ਧਨਾਨ ਸਨ। ਕੂਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਮਰੋਦ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰੋਦ ਵਰਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬਾਬਲ ਅਤੇ ਅਰਕ ਅਤੇ ਅੱਧਕ ਸ਼ਿਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, यानी ये नमरूद जो था ये हाम का बेटा जो कूश था, है ना, उससे पैदा हुआ। और इसी से आगे ये जो कौमें हैं या ये मुल्क जहाँ पे था, तो इसने ये जो बाबल की जगह थी, मुल्क था इराक, है ना, वहां पे बाबल का बुर्ज जो था वो बनाया था। और क्या कहते हैं, जहाँ पे कह लें कि इसकी जो बादशाही थी वो शुरू हुई थी, है ना। बाबल का बुर्ज जो था वो भी आगे महल 11 आयत में चैप्टर में देखें कि इसने बाबल का बुर्ज बनाया था। और ये क्या था, ये सूरमा क्या था, ये खुदावंद के खिलाफ था, खुदावंद के सामने था। ये क्या कहते हैं, पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव इसमें वे में है कि उसके सामने था, यानी उसके साथ इसकी लड़ाई थी, खुदावंद के साथ इसकी लड़ाई थी। और ये बुर्ज जो था ये इसने बाबल में बनाया कि ये इसको इतना ऊंचा लेके जाना चाहता था कि आसमान तक, यानी खुदावंद का जहाँ पे तख्त लगा हुआ है, ये चाहता था कि मैं इतना ऊंचा उसको बना लूं कि खुदावंद के साथ या खुदावंद से भी ऊंचा जो तख्त है वो ये बनाना चाहता था। तो इसलिए ये बाबल का बुर्ज जो था इसने बनाया था, है ना। तमूज की हम बात करेंगे, लेकिन असल में तमूज और नमरूद जो है ये एक ही हैं, है ना। इसलिए इसको जानना पहले जरूरी है कि जो पैदाइश की किताब है, या यहाँ से हमें ये पता चलता है कि असल में ये क्या था, खुदावंद के
सामने या खुदावंद के खिलाफ जो था ये सुरमा था, और इसने ही बाबल का बुर्ज जो था बनाया, और यहीं से आगे जो थी, इससे पहले जो जितनी दुनिया थी, मतलब जैसे नूह के तूफान के बाद और पहले भी वो एक ही खुदा की पूजा जो है, या एक ही खुदा को वो मानते थे। लेकिन जब ये बादशाह बना और इसकी जो बीवी थी सतारा मलका देवी, अ, तो यहाँ से ही कह लें कि जब इन्होंने बाबल का बुर्ज बनाया, या जो नहीं 10वीं आयत में मिलता है, बाबल के बुर्ज से पहले ही इन्होंने जो ग्रोह थे और कबीलों में बट गए थे, और इन्होंने और खुदाओं की जो पूजा है वो करनी जो शुरू कर दी थी। इसी 10 चैप्टर के एंड की जो आयतें हैं उसमें हमें मिलता है कि वो कबीलों में बट गए थे, या वो और खुदाओं की जो है प्रस्तिश जो है वो मजहब जो थे वो बन गए थे। उससे पहले सिर्फ खुदा को मानते थे, या फिर हम पीछे नूह का तूफान का उधर नहीं मैं ज्यादा जाती। तो ये एक ही खुदा को उस वक्त दुनिया जो थी मानती, लेकिन जब इसने आके इसकी बादशाही शुरू हुई तो कौमों में बट गए, कबीलों में बट गए, और ये चांद की, सूरज की, और दरख्तों की, या और जितने भी बुत थे, बुत परस्ती जो थी कह लें कि यहाँ से शुरू हुई थी। जितने भी फर्क जैसे कह लें कि खुदा हैं, और उनकी बुत बुत हैं, मूर्तियां हैं, वो इसने नमरूद ने शुरू की थी। उससे पहले बुत परस्ती नहीं थी, है ना? उससे पहले जो थी एक ही कह लें कि मजहब था कि खुदावंद को मानते थे। तो इसलिए नमरूद ने ये शुरू किया, और ये बहुत ही जैसे कह लें कि ज़ालिम या अम, बादशाह था। और ये जो हवाला है ये हमें बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन जो एक किताब है जो बाइबल में शामिल नहीं है लेकिन उसका ज़िक्र हमें मिलता है, जैसे हनूक की किताब और जैशर की किताब जो है। जैशर की जो किताब है उसमें हमें ज़िक्र मिलता है कि ये जो नमरूद था, इसको जो असौ था, इसहाक का बेटा, यानी यकूब और असौ 2 भाई थे ना, जिसके याकूब की नस्ल से कह लें, या उसका नाम इसराइल है, उससे हम चले हैं, या इसराइली कौम जो है ना? तो उसका जो दूसरा भाई था असौ, उसने इसको मारा था, नमरूद को। क्योंकि वो भी कह लें खुदाउन का सुरमा था, और उसने इसको मारा था, नमरूद को। और कहते हैं, ये भी हमें डिटेल जो है वो बाइबल में नहीं मिलती, कि जब ये मर गया था तो जो इसकी बीवी थी अस्तारा मलका देवी, उसके बहुत से नाम हैं। हर जैसे कह लें, क्योंकि मजहब यहीं से निकले थे, बुत परस्ती यहीं से निकली थी, तो जहां जहां जैसे यूनान में उन्होंने उसका फर्क नाम रख दिया, मिस्र में उसका फर्क नाम रख दिया इसी नमरूद का। और इसके नाम ये देखें, काफी इसके नाम हैं। और जैसे शायद एक वो वर्ड्स नहीं मुझे मतलब मैं नहीं देखी, कि जहाँ पे लिखा है मेरे ख्याल ये जशवा की उसमें किताब में है कि ये शक्ल का जो था ना, इसको डैगोन महल इसका नाम था। इस बुत के आगे जो अहद का संदूक था वो रखा था, तो उसके बाजू जो थे वो टूट गए थे। वो अहद का संदूक वहां पे रखा, और फ़लस्तियों ने शायद मुझे वो उसमें मैंने याद नहीं। तो जहाँ अहद का संदूक रखा था तो इसकी मूर्ति जो है या इसका बुत जो था वहाँ पड़ा हुआ था। तो खुदावंद का कह लें रोब और दबदबा या उसकी वो खुदावंद के पास हमारा इख्तियार है कि वो अहद का संदूक
اس کے پاس رکھا تھا تو یہ پہلے دن انہوں نے دیکھا کہ بازو ٹوٹ گیا، پھر انہوں نے دوسرے دن دیکھا کہ یہ پورا ہی اوندے منہ جیسے کہہ لیں عہد کے صندوق کے پاس ایسے میں کہوں کہ پڑا ہوا تھا جیسے یہ سجدے کے لیے گرا ہوا ہے، کیونکہ اس کا سر جو ہے وہاں پہ گرا ہوا تھا۔ یہ ہمیں یہ بائبل میں ملتا ہے، لیکن سوری میں نے نا وہ ورس نہیں ڈھونڈی، تو یہ ڈیگون شاید اس کا نام ہے، اس میں تھا۔ تو یہ وہی نمرود کہہ لیں یا وہی اس کے، کیونکہ بہت سے نام ہیں بتوں کے جو اس کا نام ہے، تو وہ ہمارے خدا کے آگے وہ ٹھہر نہیں سکا، صرف عہد کا صندوق ہی پڑا تھا تو یہ گر گیا تھا۔ تو اس کے دیکھے فرق ہے، شکلیں کہہ لیں یا اس طرح کے بت جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو یہ غیر قومیں ہیں جو بت پرست ہیں، تو کیونکہ بت پرستی اسی سے نکلی ہے، تو ہر جیسے کہہ لیں جو بت پرست ہے قوم ہے اس نے فرق اس کے نام رکھے ہیں اور بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہاں سے جب یہ اس کی موت ہو گئی، اس کو اسونے کہتے ہیں، بائبل میں ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ بائبل کی ہی ایک جیسے کہہ لیں بک ہے جو اس میں بائبل میں شامل نہیں ہے، اس میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ اس کو اسو نے مار دیا تھا۔ اور جب یہ مر گیا تو جو سارا ملکہ تھی، دیوی جو تھی، اس کے بعد وہ پریگننٹ ہو گئی، وہ حاملہ ہوئی، اور اس نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ یہ جو نمرود تھا جو مر گیا تھا یہ سورج دیوتا ہے، تو سورج کی جو شعائیں ہیں سن کی وہ اس کے اوپر پڑی ہیں، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی ہے، تو اس لیے یہ سورج اس کو دیوتا بھی کہتے ہیں، سن گاڈ کہتے ہیں یہ نمرود کو ہی۔ اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے جو بچہ جو تھا وہ پیدا ہوا، اس کا نام اس نے تموز رکھا، ہے نا، تو وہ ان کا بیٹا تھا نمرود کا، اور ایسٹر ملکہ یا استارا ملکہ، اس کے بھی بہت سے نام ہیں، ہے نا، تو وہ تموز جو تھا وہ پیدا ہوا، اور جس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، یہ تموز جو تھا، تو یہ جو تموز تھا یہ بھی کہہ لیں کہ شیطانی طور سے ہی پیدا ہوا، کیونکہ اور کہ شمائیں وہ اس کی ماں جو تھی وہ کہتی تھی کہ میرے اوپر پڑی اور وہ پیدا ہوا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سورما تھا اپنے جیسے کہہ لیں باپ ہی کی طرح، اور وہ بہت ہی جیسے کہہ لیں کہ ایک خوبصورت تھا یا جیسے بھی کہہ لیں، تو اس کی ماں جو تھی یہی استارا ملکہ جو تھی، اوکے دیدی تھینک یو، تو وہ اس نے اس اپنے بیٹے ہی کے ساتھ یہ تموز جو تھا جو اسی کی کہہ لیں کوکھ سے پیدا ہوا، اس کے ساتھ اس نے شادی کہہ لیں کر لی، یا اس کا یہ دونوں جو تھے یعنی ماں اور بیٹا وہ رہنے لگے۔ اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ یہ بھی ہسٹری کی کتابوں میں آپ اگر جو بابل کی جو ہسٹری ہے بک، اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے، تو اس کی ہسٹری جاننے کے لیے جیسے کوئی بھی شہر ہوتا ہے یا کوئی بھی ملک ہے اس کی ہسٹری جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح بابل جو تھا اس کا جو کچھ رسم و رواج تھے یا جو کچھ وہاں پہ ہوتا تھا وہ اس کی ہسٹری کی جو جیسے کہہ لیں کتابیں ہیں یا جو یہودیوں کے پاس کتابیں ہیں اس میں سے ملتے ہیں کہ ان کے کیا رسم و رواج تھے، یا یہ کیا یا ان کا فیت کیا تھا۔ تو جب یہ دونوں جیسے کہہ لیں شیطانی طور پہ کہہ لیں کہ اکٹھے تموز اور اس کی ماں جو تھے وہ رہنا شروع ہوئے، تو یہ بھی ایک شکاری تھا، تو اس کا کہتے ہیں کہ اس کو ایک جنگلی درندہ جو تھا، کچھ کہتے ہیں ریچھ تھا، کچھ کہتے ہیں سور تھا، بہرحال اس کو اس نے مار دیا، اور اس ریچھ نے اس کو تموز کو جو تھا وہ مار دیا تھا۔ اور اس کا کہتے ہیں کہ جو خون تھا
वो एक जगह पे पड़ा, वो एक दरख्त के कह लें ऊपर उसकी जड़ में पड़ा, तमूज का। तो वो जो दरख्त था वो सदाबहार दरख्त जैसे कह लें, या फिर इसने क्या कहना शुरू किया कि ये दरख्त ही तमूज है, ये दरख्त ही क्या कहते हैं इसके अंदर जैसे कह लें, या वो दरख्त बन गया है क्योंकि उसका खून वहां पे गिरा था जब वो इसको दरिंदे ने मारा था। तो वो उस दरख्त की एक तो उसको तमूज बना दिया, उसको क्या कहते हैं उसकी पूजा जो थी वो करना शुरू हो गई, और वो सदाबहार उसको कहते हैं दरख्त। और ये जो अस्तारा मलका थी, देवी जो थी, जो उसकी माँ थी, अम, वो वहां पे जैसे कह लें जो क्या कहते हैं वैन या रोना करलाना, और ये तब वहां से शुरू हुआ। तो इसलिए ये पीछे थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि यहाँ तक जहाँ पे वो मर गया था, यहाँ से कह लें कि आज जो हम स्टडी जो है वो सीखेंगे कि जो जो स्तारा मलका थी, एस्टर मलका थी, या क्या बोलते हैं ईस्टर जो है जिसको हम कहते हैं, ये ईस्टर इसका नाम है। ये जो तमूज थी, तमूज था, उसकी माँ जो थी उसका नाम ईस्टर था। तो ये आगे बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये हम जो हैं जिसकी जड़ें जो हैं जाके ये बुत परस्त कौम जो है, या बुत परस्ती जहां से शुरू हुई, या जो खुदा के खिलाफ बंदा चल रहा है, जो बाइबल हमें सबूत देती है कि कि ये बंदा क्या है, ये नमरूद जो था ये खुदा के खिलाफ था। जिस तरह आजकल जो हम काशफा की किताब में सीख कह रहे हैं, मुखालफ मसीह, एंटी क्राइस्ट, तो ये बंदा क्या है, एंटी गॉड था, है ना। ये हमारे जिंदा खुदा के खिलाफ था। जिंदा जो हमारा खुदा है उसके साथ इसकी लड़ाई थी, ये उसके खिलाफ सुरमा था। खुदा हमारे जिंदा खुदा के खिलाफ सुरमा था, और उसके साथ खुदा के साथ हम इसकी लड़ाई थी। तो क्या जो कुछ ये करता था, या इसके जब ये बाबल का बुर्ज इसने बनाया, जैसे हमने देखा कि ये क्या था, बुर्ज इसने क्यों बनाया था कि मैं खुदा के आसमान तक इसको ऊंचा ले जाऊं, और जहां खुदा का तख्त है वहां पे मैं अपना तख्त जो है वो बनाऊं। तो इसलिए ये वो बंदा है, तो इसलिए ये जो कुछ करेगा वो खुदा के खिलाफ काम करेगा। जो कुछ भी जहाँ पे बाबल का बुर्ज बना, या बाबल का जो, या बुत परस्त कौमें जो कुछ करती हैं वो खुदा के खिलाफ है। आप उसको जैसे भी धो धो के उसको बाइबल के साथ मैच कर लें, है ना, जो भी बड़ी ही, क्योंकि इसकी जब ये मसीहत में सारी बुत परस्ती और सारा कुछ आ गया कि नहीं हम तो ये बुत तो मुकद्दसा मरियम का है, ये बुत तो खुदा यीशु मसीह का है ना। तो जो कुछ भी आप जैसे भी इसको मसीहियों ने असल में यही किया कि वो जोड़ जोड़ के सारी जो बाबल की बुत परस्ती थी वो मसीहियत में लेके आए। तो आप खुद सोचें कि जो बंदा खुदा के खिलाफ था, जो खुदा उनका दुश्मन था, दुश्मन वही होता है ना जो खुदा के खिलाफ लड़ाई कर रहा होता है ना। तो ये असल में नमरूद जो था, तमूज जो था, और अस्तारा मलका, ईस्टर मलका जो थी, देवी जो थी, वो खुदा के खिलाफ या खुदा के सामने सुरमा थे, खुदा के खिलाफ जो थे वो खड़े हुए थे, या खुदा उनके साथ इनकी लड़ाई थी, लड़ाई है अभी भी, यानी जो उनकी स्पिरिट है वो काम कर रही हैं। तो ये जो बाल था ये भी नमरूद था, है ना, जिसके आगे कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। तो ये जो भी रस्म रिवाज बाबल के उस, जब ये इसने जो शहर था इसका, जो मुल्क है, तो ये जो कुछ भी बुत परस्त कौम करेगी उसकी जो भी रस्म रिवाज होगी, और जी लोहड़ी मनाते ने, और जी और क्या क्या रस्में हैं जो ये करते हैं, आप जो कुछ भी करेंगे
وہ बुत परस्त कौमें करती हैं, और वो नमरूद से निकली हैं, और वो तमूज से निकली हैं, और वो एस्टर मलका जो है, जो देवी है, उससे निकली हैं। इसलिए आप जो कुछ भी करेंगे वो खुदावंद के आप खिलाफ काम करें, क्योंकि ये बंदा खुदा के खिलाफ था, और ये समझे कि ये इंसान नहीं, ये शैतान ही था, है ना। तो इसलिए जो भी रस्म और रिवाज दुनिया में है, वो जब आप करते हैं, जो खुदावंद ने हमें नहीं करने के लिए कहा, है ना। आप जब हमने वो तोरा की किताब पढ़ी, यानी पैदाइश से लेके तशना की किताब तक हमने पढ़ा, उसमें खुदावंद ने बार बार लोगों को क्या कहा कि तुमने वो रस्म और रिवाज नहीं करने जो बाकी की कौमें करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी इबादत के लिए वहां से निकाल के लाया। जो इब्राहिम था वो यहीं पे रहता था, इराक में, जैसे कह लें बाबल में। तो वहां से खुदावंद उसको निकाल के ले आया, क्योंकि वो भी क्या करता था, बुत परस्ती उसके इब्राहिम के जो थे वो बाप दादा या वो करते थे। तो खुदावंद वहां से उसको निकाल के ले आया, है ना। फिर खुदावंद जो है उसकी जो आगे औलाद थी, जो कि उसमें चली गई है, सीरी में कैद में चली गई, इसराइली कौम। तो खुदावंद फिर उसको निकाल के लाया मिस्र से, क्योंकि मिस्र भी क्या करते थे, यही बुत परस्त कौम थी, और इसी यही उनका बाप था, यही उनका खुदा था, नमरूद जो था। तो खुदावंद फिर मिस्रियों को, इसराइलियों को मिस्र में से निकाल के लाया, और फिर हमें दुनिया में से निकाल के लाया, बुत परस्ती में से। आप जो जो भी जहां जहां से भी आए हैं, हिंदू में से, सिख में से, या हम जो हैं हम भी वहां से निकले, या मुस्लिम जो हैं, तो हमें खुदा निकाल के लाया ताकि हम इबादत करें, ताकि हम वो जो रस्म रिवाज थे वो ना करें, है ना। तो ये थोड़ा एक क्या कहते हैं कि हमें मिलता है। और ये जो था क्या कहते हैं, तमूज था, जब ये मर गया, तो जो अस्तारा मलका थी, देवी जो थी, वो अब इसके लिए रोती थी, इसके लिए वो आ, उसने 40 जो थे वो रोजे रखे, और वो राख पे बैठी, आ, और उसने कह लें कि अपने, क्योंकि इसका नाम तमूज था, तो वो तमूज के नाम का निशान जो था अपने माथों पे औरतें जो थी वो लगाती थी, या ये जो देवी थी वो रोती थी, और इसके लिए तमूज के लिए। और उसने 40 दिन तक वो रोजा रखते थे, ये जो लोग थे, और वहां पे बैठ के इसके लिए आहो नाला करते थे, तमूज के लिए। और ये गोश्त और दूध से बनी हुई जो भी चीज होती थी वो नहीं लेते थे, अंडा जो था वो भी नहीं कह लें लेते थे। गोश्त से कुछ भी, जैसे कह लें कोई भी गोश्त जो है, क्योंकि कह लें कि रीछ ने इसको मारा और इसको कह लें खा गया था, तो वो गोश्त जो थे वो नहीं लेते थे उन दिनों, जो जब वो उस कह लिए रोते थे। तो ये औरतें जो थी इस अस्तारा मलका के साथ बैठ के रोजा रखती थी और रोती थी। और ये हवाला जो है कि ये रोती थी, और इसको ये नहीं कहते हैं कि लैंड सीजन, यानी जिसमें ये क्या करते हैं, रोजा रखते हैं और छोड़ देते हैं अंडा खाना और गोश्त खाना और दूध से कोई भी बनी हुई जो चीज है। और ये जो ये एक किताब है जो एक खुदावंद के काले बंदा ने लिखी है, दो जो बाबल हैं। ये भी अगर आप किताब जो है वो ये अलेक्जेंडर ने लिखी है, द टू बैबलॉन्स, ये उसने लिखी है। और उसमें ये साफ उसने, क्योंकि जब ये मसीहत में आया तो उन्होंने नाम भी नहीं चेंज किया कि ये 40 दिन जो रोजा रखते हैं उसका इस ये जो क्या कहें तो सतारा मलका है, या ये बुत परस्त जो कौमें हैं, उन नाम भी उनका यही है, लैंटी है।
اس لیے یہ جو کیا کہتے ہیں مصری ہیں یا جو بھی یہ بت پرست قومیں ہیں، یہ 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اس میں گوشت کھانا جو ہے یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں یا وہ چھوڑ دیتی ہیں، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر میرے اس پہ یعنی یقین نہیں ہے تو آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ٹو بیبلونز یہ اس کا نام ہے۔ آپ بک نکال کے انٹرنیٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر ویسے لے کے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس میں یہ ہسٹری یا اس کا نام جو ہے یا یہ جو وہاں پہ رسومات ہوتی تھی، جو بھی جیسے اس دن میں کہہ رہی تھی کہ جو کچھ بھی یہ منایا جاتا ہے، یہ ویلنٹائن ڈے، یہ ہالیڈیز، یہ مدرس ڈے، یہ فادر ڈیز، نیو ایئر، کرسمس، ایسٹر، اور بھی اس طرح کے جو بھی ڈے ہیں، جس دن کہہ لیں مزدوروں کا دن جو ہے، وہ سب یہ ڈے جو تھے یہ مناتے تھے یہ۔ لیکن آج ہم صرف اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تموز جو تھا جب یہ مر گیا تو یہ عورتیں جو تھیں یہ بیٹھ کے اس کے لیے کہہ لیں روتی تھیں اور روزہ جو تھی وہ رکھتی تھیں۔ اور اس کا حوالہ جو ہے ہمیں یہ آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ صاف لینٹ ہی لکھا ہے، تو یہ انہوں نے چینج بھی نہیں کیا، یہ مسیحیت میں کہہ لیں کہ یہ لے اور 40 دن کا روزہ اور راکھ جو تھی وہ نیچے بھی بچھاتے تھے اور وہ راکھ جو ہے اپنے ماتھے پہ لگاتے تھے، کیونکہ اس کے نام کا نشان جو ہے وہ لگاتے تھے، اور اس کا نشان جو ہے وہ کیا ہے، یہ ساری جو کراس ہیں یہ اس کا نشان ہے، یہ تموز کا نشان ہے، کیونکہ اس کا کہہ لیں نام کا نشان جو ہے وہ یا اس کا جو تھا وہ تموز کا جو کراس جو تھی وہ بناتے تھے اپنے ماتھوں کے اوپر، تو وہ اس کا نشان تھا تموز کا۔ لینٹ جو تھی جو سیزن تھے وہ مناتے تھے، تو وہ اس کا نشان جو تھا اپنے ماتھوں کے اوپر بناتے تھے۔ تو ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں، وہ سب کو ہی آپ کو پتہ ہے، حزقیل 8 باب اس کی 14 آیت، اور یہ روٹیاں اس طرح کلیں بناتی تھی کیک کی طرح، اور وہ اس کے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیک بھی وہیں سے شروع ہوا تھا۔ جی وفا اور رنجنا پڑھیں گی حزقیل 8 باب اس کی 14 آیت سے آپ پڑھنا، جہاں ہمیں تب وہ ملتا ہے کہ مجھے یہ رو رہی تھی۔ ہاں جی، تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمال پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ ہاں جی، آگے اس کو تھوڑا پیچھے بھی اوکے، پڑھنا۔ ہاں جی، کہاں سے؟ 12 آیت سے؟ ہاں دیکھو ذرا، میں نے ابھی نکالا نہیں۔ اوکے، 7 آیت میں لکھا ہے کہ اچھا، تب وہ مجھے صحن کے پھاٹک پر لایا، اور میں نے نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دیوار میں ایک چھید ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، دیوار کھودو۔ اور جب میں نے دیوار کھودا تو ایک دروازہ دیکھا۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، اندر جا اور جو نفرتی کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ۔ تب میں نے اندر جا کر دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہر نوع کے سب رینگنے والے کیڑوں اور مکروہ جانوروں کی سب صورتیں اور بنی اسرائیل کے بت گردا گرد دیوار پر منقش ہیں، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 شخص ان کے آگے کھڑے ہیں، اور یزنا بن صافن ان کے وسط میں کھڑا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بخور دان ہے، اور خوشبو بخور کا بادل اٹھ رہا ہے۔ تب اس نے مجھ سے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے سب بزرگ تاریکی میں یعنی اپنے منقش کشانوں میں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم کو نہیں دیکھتا، خداوند نے ملک چھوڑ دیا ہے۔ اور اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا۔ تب وہ مجھے خداوند کے گھر میں کے شمال پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ تب اس نے ہاں مجھ جی، سے بس فرمایا، اوکے، ہاں جی، یہ جو آپ نے پڑھا کہ وہ ہر
किस्म की क्या कहते हैं उसकी शक्लें जो बनी हुई थी बुतों की, उसकी पूजा कर रहे थे, और उसके आगे बखूर जो थे वो जला रहे थे। ये जो पानी छिड़का जाता है और ये जो बखूर जो जलाया जाता है, ये भी वहीं पे, क्योंकि ये देखें कि ये बाइबल ही हमें बता रही है कि भाई ये बुतों के आगे बखूर जला रहे हैं या बुतों के आगे सजदा करें। और जिसकी क्या शक्लें सारी किसकी बनी हुई हैं, कीड़े मकोड़ों की। तो ये सारे खुदा, कोई सांप की शक्ल का खुदा है इनका जिनको ये बुत परस्त मानते हैं, और कौवे की शक्ल का, या इतने हैं मुझे इन सब के नाम भी नहीं आते। तो ये सारे कीड़े मकोड़ों की शक्ल के जो बुत हैं, जैसे अभी वो उसका देखा जो अभी दीदी ने हमें वर्ड्स में भेजी है कि वो फिश की शक्ल का था, मछली की शक्ल का था, सांप की शक्ल का। इस तरह के जो बुत हैं वो बनाते हैं, बनाए हुए हैं लोग, और उनको पूजते हैं और उनके आगे बखूर जलाते हैं। तो ये भी, अभी ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये जो खुशबुएं जलाना या बखूर जलाना, ये भी हम नए अहदनामे में नहीं देखते, ठीक है। अब क्योंकि हम रूहानी तौर पे कर रहे हैं बखूर जलाना यानी दुआएं, ठीक है। तो इसलिए ये देखें कि ये भी इस वर्ष से हमें मिलता है। जी अंजना, आप पढ़ेंगे हिस्केल? हाँ जी, हाँ जी। हिस्केल चैप्टर 8 14 बाब, नहीं हिस्केल 8 8वां। बाब उसकी 14 आयत पढ़ना। ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੀਵੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਗੇ हाँ जी, बस ठीक है। ये हमें पता चलता है कि किसके लिए रो रही थी, तो मूस के लिए रो रही थी। और कहाँ पे बैठी हुई थी, हैकल में उसने देखा। खुदावंद ने उसको दिखाया हिस्कियल को। तो इसलिए ये कहाँ हो रहा है, ये बाहर कहीं नहीं हो रहा। ये कह लें कि खुदा के लोगों के अंदर ही हो रहा है, या ये पुराने अहदनामे की बात हो रही है, या अब नए अहदनामे में जो चर्च है वहां पे ये सारा कुछ हो रहा है। बाहर की जो गैर कौमें है वहां पे नहीं, उसने खुदा ने उसको दिखाया था, हैकल के अंदर दिखाया था कि ये देखो हैकल के अंदर ये काम हो रहा है, या ये चर्च में कह लें कि ये काम हो रहा है। खुदावन ने हिस्कियल अपने बंदा को, अपने नबी को ये दिखाया था, रोया में दिखाया था, है ना। तो इसलिए ये जो दूसरे दूसरे बुतों की पूजा जो है वो हो रही थी, वो कहाँ पे हो रही थी, हैकल के अंदर ही हो रही थी। एक हिस्सा था जहाँ पे ये हो रही थी, और वो कीड़े मकोड़े जो थे जिनकी जो शक्लें जो हैं, ये सूरतें जो हैं वो फर्क फर्क थी। और आपने जो है इंडिया में रहते हैं, आपको पता ही होगा कितनी किस्म की शक्लें हैं जिन जिनको इन्होंने खुदा बनाया है, जिनकी ये पूजा जो है वो करते हैं। तो ये कहाँ से निकली थी, ये यहीं से नमरूद से निकली थी, ठीक है। तो ये जो तमूज था, इसके लिए ये नोहा कर रही थी, ये हिस्किल की किताब में हमें मिलता है। और खाक जो थी, खाक के ऊपर ये बैठती थी औरतें और रोजा रखती थी। और ये लेंट सीजन जो है, ये इस बुक में जो उसने एक लिखी है, उसमें उसने ये सारे पेज जो हैं ये भी बताए हैं कि ये सारे जो हैं क्या कहते हैं उस किताब में लिखे हुए हैं कि ये लेंट ही उसका नाम ये लेते हैं, और लेंट ही सीजन जो है, जो हम रोजे कह लें कलीसियाएं हमारी रखती हैं, है ना। तो उन्होंने नाम भी नहीं देखे बदला। और 40 दिन का वो रखते थे, 40 दिन का ही कह लें इन्होंने कहा कि जी 40 दिन का रोजा इन्होंने जोड़ जोड़ के खुदा यीशु मसीह के उन 40 रोजों के साथ इनको मिलाया। और ईस्टर का जो है वो हम मंडे को करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने सारी चीजों को यानी कह लें मुकद्दसा मरियम को, या क्या कहते हैं उसके जी उठने को, उसके रोने को कि खुदा यीशु मसीह जो क्या कहते थे उसको मार दिया था, यानी है ना सलीबी मौत। उन्होंने सारा जोड़ जोड़ के कोशिश की कि जो तमूज है उसको खुदा यीशु मसीह के साथ जो है वो जोड़ दिया जाए, है ना। तो लेंट सीजन जो था, या वो जो राख थी, राख देखें फर्क तरीके से उन्होंने साथ जोड़ दी। और रोजे जो थे वो, हालांकि जब खुदा यीशु मसीह ने वो तो मिनिस्ट्री जब शुरू की थी
खुदावंद ने तो तब रोजे वो रखे थे, है ना। खुदावंद यीशु मसीह ने तो वो रोजे जो थे वो एक कह लें कि एक मैं कहूंगी कि दुनिया फतह करनी थी, तो उसने दुनिया या कह लें शैतान पे फतह हासिल करनी थी, तो उसने तब रोजे रखे, है ना। वो किसी मुर्दा या कोई मर गया था उसके लिए तो रोजे नहीं थे रखे, है ना। तो उन रोजों को इन रोजों के साथ उन्होंने मिला के, और जो अस्तारा मलका थी उसका नाम है ईस्टर, यानी जो हम मनाते हैं, है ना। ये कल मंडे को हम बात करेंगे। तो इसलिए सारा उन्होंने जो खुदावंद यीशु मसीह है उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया। लेकिन बाइबल हमें कहीं पे नहीं ये बताती कि हम जो है इस तरह 40 दिन का रोजा रखें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या कहा कि जब तुम रोजा रखो, या खुदावंद ने हमें कोई भी जैसे कह लें चीजें, ये जो गोश्त उस टाइम नहीं खाते उन दिनों में 40 दिनों में, तो हमें कहीं पे भी खुदा ने ये मना नहीं किया कि तुम ये ना खाना, ये ना खाना, ये ना खाना। पुराने अहदनामे में हमें ये मिलता है कि जी हाँ, वो जो जानवर हैं हलाल या हराम, है ना, उनके बारे में बताया। लेकिन नए एहदनामे में आके वो भी खुदावंद ने ये कहा, जब पतरस को वो चद्दर में दिखाया तो खुदावंद ने एक किस्म का ये कहा कि जो कुछ तुम खाते हो, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो तुम्हें नापाक नहीं करता, बल्कि जो हमारे दिलों के अंदर निकलता है वो हमें नापाक करता है। और पौलुस रसूल ने भी कहा कि जो कुछ वो खा रहा है वो हमारे जैसे कह लें वो निकल जाता है, वो हमें नापाक नहीं करता। तो इसलिए वो भी खुदावंद यीशु मसीह ने आके उससे भी कह लें कि वो अच्छा है कि हम ना खाएं हराम चीजें, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसका भी एक फर्क जो था या वो एक था वो खत्म कर दिया। तो इसलिए हमें रोजों में ये नहीं कहा, या खुदावंद यीशु मसीह ने या खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में कहीं पे भी आके उन्होंने ये तालीम नहीं दी कि इतने दिन तुम रोजा रखो। एक पैटर्न जो है या एक खुदावंद ने वो कहा कि तुम रोजा रखो जब तुम रोजा रखो, है ना। ये नहीं कहा कि 40 दिन रोजा रखो। और फिर खाने पीने का भी हमें कहीं पे भी मना नहीं किया। हम एक हवाला पढ़ते हैं, पौलुस रसूल हमें बताते हैं, कुलसियों 2 बाब, आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा इसमें 2 में मैं खत्म करना चाहती हूँ। कुलसियों 2 बाप निकालना, वफा और अंजना। जी, वर्स। उसकी 20 आयत से आप एंड तक पढ़ना। ओके। जब तुम मसीह के साथ दीनवी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, तो फिर उनकी माने जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो कि इसे ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब चीजें काम में लाते लाते फना हो जाएंगे। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फायदा नहीं होता। आमीन। आमीन। हाँ जी, ये देखिए खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने साफ साफ ये बताया कि ये जो ये मना करते हैं कि गोश्त नहीं खाना, ये ना खाना, ये ना चखना, है ना, ये इसको ना छूना, या ये कुछ चीजें जो हैं इन दिनों में छोड़ देते हैं लैंड सीजन में, कि जी फोन नहीं यूज करना, टीवी नहीं देखना, या कुछ ऐसे कि ये इन दिनों में हमने चीजें जो है वो नहीं यूज करनी, है ना। तो इसलिए खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने ये साफ साफ यहाँ पे बताया है कि ये जो तालीम देते हैं, ये जो है काम इंसानी हुक्म है जो खुदा ने नहीं बनाए, जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने या खुदा यीशु मसीह ने हमें नहीं कहा, उन पे चल के कुछ लोग ये समझते हैं कि वो नहीं, देखो ये भी तो अगर हम करते हैं तो इससे फायदा ही हो रहा है ना, रोजा रख रहे हैं या ऐसे बुरे काम नहीं उन दिनों करने, है ना, तो इससे फायदा ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे खुदा उनका बंदा हमें साफ साफ कह रहा है कि जो बातें जो अहकाम, ये तालीम जो है इंसानी तालीम है, इंसान ने कानून बनाए हैं, हुक्म बनाए हैं, इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से
हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों को रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जो इस तरह लोग करते हैं, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं है। जो इस तरह आप करते हैं, ये उसी को, तमूज़ को या उसके क्या लें, जैसे वो करते थे, है ना? उसको ही आप पूरा करें। इसमें खुदावंद के, क्योंकि खुदावंद ने हमें, आयतें और भी काफ़ी हैं, लेकिन हम उनको निकालेंगे नहीं, क्योंकि मेरा ईमान है, आप सबको पता है ना? कि खुदावंद ने हमें ये कहा कि अगर तुम खुदावंद के हुक्मों पे अमल करो, खाकसारी से चलो, मेरी इबादत करो, तो वो हमें पाक साफ बना रही है, वो हमें ओवरकमर बना रही है। हमें इस तरह जो इंसानी हुक्म मिले हैं या तालीम पे हम अमल करके हम पाक साफ या क्या लें, जो फ़तेहमंद जो ज़िंदगियाँ हैं वो नहीं गुज़ार सकते, क्योंकि वो अपनी कोशिश से कर रहे हैं। अपने जैसे कह लें जान को वो दुःख दे के, जैसे कह लें आपको पता है रियाज़त कुछ लेट-लेट के मंदिरों में जाते हैं या घुटनों के बल होके जाते हैं, कुछ अपने आप को चाकू से, छुरियों से मारते हैं, करते हैं, ज़ख्मी करते हैं और समझते हैं कि ये जो कुछ हम रियाज़त कर रहे हैं, है ना? तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा इस रियाज़त से। लेकिन खुदावंद का जो बंदा है वो साफ़ हमें बता रहा है कि कुछ फ़ायदा नहीं है। ये पौलुस रसूल हमें कह रहा है कि ऐसी-ऐसी जो आप चीज़ें करते हैं, बातें करते हैं, रियाज़त करते हैं, अपने जिस्म को दुःख देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि हम जो हैं खुदावंद ने जो हमें वो रोज़ा है, वो यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, लेकिन और 1-2 हवाले हैं कि ये खाक जो थी जो माथों पे लगाती थी या खाक के ऊपर बैठते थे, ये पुराने अहदनामे में, ये यहूदियत में भी पाया जाता है, जो कि वो सब कुछ जिस्मानी करते थे, है ना? तो इसलिए हम जब हम नए अहदनामे के मुक़द्दिसीन हैं, तो इसीलिए हम देखिए कुर्बानियाँ भी रूहानी तौर पे करते हैं। इसी तरह वो अगर क्योंकि ये इसके साथ भी उसको मैच करते हैं, आप निकालना क्या बोलते हैं, वफ़ा आस्तर की जो किताब है, उसका 4 बाब उसकी पहली आयत में कि जो मर्द की जो था, वो रोज़ा रखा उसने और काख पे बैठा और अपने सर में खाक डाली। तो इस तरह भी वो लेते हैं कि देखो वो भी तो खाक डालते थे, यहूदी जो थे जब रोज़ा रखते थे या जी, वफ़ा निकालना अस्तर की किताब, जी, कौन सा उसका 4 चैप्टर? बाब उसकी पहली आयत, 4 बाब पहली आयत, जिसमें ओके। मर्दकी ने खाक पे बैठा था और अपने सर पे भी खाक डाली थी। जब और मर्दकी भी को काफ़ी उस हवाले हैं। जी, जी। हाँ, बोलो सॉरी। आस्तर की किताब उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से, जब मर्दगी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ, तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चलाने लगा और वो बस बादशाह ठीक है, के फाटक ओके। थैंक यू। हाँ, तो वो यहूदी लोग जो हैं, वो भी खाक जो हैं जैसे कह लें उस पे बैठते थे, वो करते थे और सर पे भी डालते थे। लेकिन अब नए अहदनामे में देखें कि हमें खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, वफ़ा आप निकालना मत्ती 6 बाब उसकी 16 आयत में, कि हम जब रोज़ा रखें, कोई भी मुश्किल है या परेशानी है, आ गई है या जी, निकालना 6 बाब उसकी 16 16 आयत 16 आयत, हाँ जी, ओके। कि जब हम और रोज़ा रखें तो क्या करें? जी, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। आमीन, आमीन, हाँ जी। तो हम नए अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, उनको खुदावंद ने ये कहा है, हमें ने ये नहीं कहा कि खाक डालें। अगर पुराने अहदनामे में या जो इस्राएली कौम थे वो इस तरह करती थी, लेकिन हमें ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहा, है ना? हमें बल्कि कहा तेल डाल, मुँह धो,
اور یہ کہتے ہیں کہ وہ خاک جو ہے وہ لگی رہنے دینا ہے. کچھ لوگ تو اس کو دھوتے ہی نہیں ہے منہ. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تو اپنا منہ دھو. دیکھیں یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ایک کہہ لیں اسٹڈی ہے، یا اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے. لیکن یہ لوگ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ وہی بت پرستی کی طرف، وہی نمرود کی جو کہہ لیں کہ تعلیم ہے، یا کیا کہتے ہیں تموز جو ہے اس کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں، اور روزہ رکھے نالے روئیے نالے اوکے کے لے ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں، اپنی جان کو دکھ دیں، ہے نا. اور سب کو بتائیں کہ میرا تو لینڈ سیزن چل رہا. ہمارے ایک جاوید کا ایک وہ کیا کہتے ہیں دوست ہے، دوستوں نہیں انشورنس اس سے وغیرہ جو کام کرتے ہیں، تو وہ پچھلے سال آیا، ایک دو دفعہ آیا، تو وہ اسی سیزن میں آتا ہے انشورنس کے لیے اس کے. تو آپ نے اس کو چائے یا دینے، نو 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 میرا تو لینڈ سیزن چل رہا ہے، آپ کا نہیں چل رہا. تو اس طرح یہ سیزن پورا انہوں نے، جیسے دودھ کی بنی ہوئی ہے نا چائے، وہ انہوں نے نہیں لینی، یہ گوشت نہیں لینا، اور بھی کافی چیزیں ہیں جن کا لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا فون کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ لینڈ سیزن جو ہے وہ مناتے ہیں. لیکن ہمیں ہمارے خداوند نے کیا کہا کہ جب تو روزہ رکھے پوشیدگی میں رکھ، اور تیرا خدا صرف جانے. جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو اعلان نہیں کرنا کہ جی ساروں کو بتاتے پھریں ہم نے روزہ رکھا ہے، یا ہم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے، یہ چھوڑ دیا ہے نا. اگر آپ کو خداوند پاک روح گائیڈ کرتا ہے، جیسے ہم نے سیکھا، وہ بھی حوالہ ہم تب تک آپ نکال کے رکھنا، یسایہ 58 اس کی 5 اور 7 آیت وفا نکالنا ہے نا. تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس طرح روزہ رکھنے کے لیے کہا کہ اپنے سر میں تیل ڈال. یہ کیا کرتے تھے؟ خاک ڈالتے تھے یہودی لوگ یا پرانے عہد نامے میں، یا یہ جو لینڈ یہ اس کے بت پرست تھے. اور ماتھوں پہ بھی راکھ جو ہے تموز کا نشان جو ہے، جو اس کی صلیب ہے، یہ جو تھی یہ بنایا کرتے تھے، ہے نا، بناتے ہیں یعنی ابھی بھی. تو یہ وہ بنایا کرتے تھے، یہ لینڈ کی جو کراس ہے. باقی بھی یہ سلیب جو ہیں ساری اسی کا نشان ہے، لیکن جو اس وقت سلیب جو اس کے ماتھوں پہ بناتے تھے، وہ ماتھے پہ بناتے ہیں، وہ یہ والا نشان ہے، یہ جو کراس کا نشان ہے. لیکن ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں کیا کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈالیں. اور پھر ہمیں روزہ جو ہے وہ اس طرح رونے کر اس کے لیے نہیں کہا، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا، تم میرے لیے نہ رونا، اپنے بچوں کے لیے رونا، ہے نا. تو اس لیے ہم جب روزہ رکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے جو قربانی دی ہے، جو صلیبی موت ہے، یا وہ ہمارے رونے یا اس کی وجہ سے مردوں میں سے جی نہیں تھا اٹھا، ہے نا. یہ ہم منڈے کو بات کریں گے، ہے نا. تو ہم جب روزہ رکھیں تو ہمارا کوئی اس کے پیچھے مقصد ہو. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو، جیسا کہ دانیل نے جب روزہ رکھا تو اس نے کیا کیا، اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا، یا پھر اس نے جب وہ خواب دیکھا تھا جو بادشاہ نے، اس کی تعبیر کو بھید کو جاننے کے لیے کہ اس کا تشریح کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، وہ مورتی کا کیا تھا اس کا نام، نبوکد نظر بادشاہ. تو دانیل نے خداوند سے اس کی تشریح جاننے کے لیے، اس کلام کو سمجھنے کے لیے، اس خواب کو سمجھنے کے لیے اس نے روزہ رکھا تھا. تو ہم بھی جب روزہ رکھیں تو ہمارا پیچھے کوئی مقصد ہو. ہمیں فرض کریں کلام کی نہیں سمجھ آ رہی، یا جس طرح ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب ان کو خدمت کے لیے چننا تھا، پالوس کو اور برناباس تھا، ہے نا، تو انہوں نے روزہ رکھا کلیسیا نے کہ خداوند تیری کیا مرضی ہے. تو اس لیے ہم اس طرح کے کہہ لیں مقصد جو ہیں، یا بیمار ہیں تو خداوند کے سامنے ہم روزہ رکھیں کہ خداوند تو یہ اور بھی اس طرح کے جو مقصد ہوتے ہیں، یعنی پیچھے ہمارا کوئی مقصد ہو جس کے لیے ہم روزہ رکھیں. ایسے ہی کسی کے کوئی مر گیا وہ دل ہی نہ روزہ رکھے کہ خداوند تو انہوں زندہ کر دے، ہے نا. اس لیے نہیں، یہ انہوں نے روزہ کس لیے رکھا تھا، یہ راکھ کا جو اوپر بیٹھی تھی اور ماتھوں پہ لگایا تھا کہ یہ جو تموز ہے یہ زندہ ہو جائے، ہے نا.
یہ راکھ کا، یہ ایش وینسڈے، یہ لینڈ سیزن، یہ اس لیے انہوں نے منایا تھا کہ یہ جو تموز ہے، یہ جو مر گیا ہے، یہ زندہ ہو جائے، ہے نا. تو ہم نے ایسے ایسے مقصد کے لیے روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا. ان کا ہمارے خداوند یسوع مسیح سے کوئی لنک نہیں ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود ہی جیسے کہہ لیں وہ مردوں میں سے زندہ ہوا، یا ہماری دعاؤں سے یا ہمارے اس سے نہیں ہوا. ہمیں خداوند نے کس لیے کس طرح کا روزہ رکھنا ہے آپ نکالنا. یسایہ 58 اس کا 5 اور 7 آیت. جی وفا. جی 5 آیت سے. کیا یہ ہم وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ اب کون سی آیت؟ 7 آیت. ہم کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپشی نہ کرے. بس کیا ہاں آگے جی. بھی نہیں، جہاں پہ آگے بھی پڑھو، جہاں پہ یہ کیا زنجیریں ٹوٹے اور جوئے اچھا بندھن یہ کھلے. 6 آیت تھی. ٹھیک ہے. کیا اچھا اچھا. وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ ہاں جی. نہیں؟ ہاں جی ہم ٹھیک. تو یہ ہے ہمارا اصل میں مقصد روزہ رکھنے کا. یا پھر ایک اور آگے شاید اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو چاک کریں، ہے نا. سوری وہ میں نے آیت پتہ نہیں کہاں بلکہ تو ہمیں خداوند نے اس طرح کا روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے نا. اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم بندنوں کو کھولنے کے لیے، زنجیروں کو توڑنے کے لیے، جہاں کہیں ہم ایسے کیا کہہ لیں بندھے ہوئے ہیں، جیسے کہ کوئی عادت ہے یا کچھ ہے، تو وہ خداوند نے ہمیں وہ طریقہ جو ہے وہ بتایا کہ اپنے دلوں کو چاک کریں، اپنے دلوں کو کھول کے خداوند کی حضوری میں رکھ دیں اور خداوند سے مدد مانگے، ہے نا. نہ کہ اپنی جان کو دکھ دیں اور اس طرح کے جیسے کہہ لیں یہ راکھ جو ہے یا یہ اس طرح کے اوپر بیٹھ جائیں اور لوگوں کو بتاتے پھریں کہ یہ سب کچھ جو ہے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس عادت سے نکلنا چاہتا ہوں، ہے نا. ہم اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتے. خداوند جو ہے ہمارے جوئے توڑ سکتا ہے. خداوند کے پاس وہ قدرت ہے، وہ طاقت ہے، وہ زور ہے. اس کے مسا کے زور سے جوئے جو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں، وہ وہ کھل آیت سکتے پڑھوں ہیں. جو آپ ابھی کہہ رہی تھی. مل گئی. سوری. ہاں جی ہاں جی ہاں پڑھو. جی. یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 12 ہاں ہاں آیت ہاں سے. ٹھیک. لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو. آمین. ہاں جی. تو جو کچھ ہم جسمانی طور پہ کرتے ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں کرنا. ہمیں جو اندرونی ہے یا دل ہے ہمارا، اس کو بدلنا ہے. آپ کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دیں گے، سروں پہ وہ لگا لیں گے، جیسا کہ ہم نے یہ میں کافی دفعہ بات کرتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا کہا، وہ بھی آیت میں نہیں اگر وہاں ملے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنی اپنی صلیب اٹھا لو. اس نے یہ نہیں تھا کہا کہ اپنے ماتھوں پہ صلیب بنا لو میری، ہے نا. خداوند یسوع مسیح نے تو اس پہ فتح پالی ہوئی ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس صلیب کو جو کہ شیطان کا نشان تھا، جو تموز کا نشان تھا، یہ دیکھے صدیوں سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس کا نشان جو تھا یہ اس کا نشان ہے. یہ صلیب جو ہے یہ تموز کا نشان تھا. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کے اوپر فتح پالی ہے، اتر گیا ہے، وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے. اس نے اس کے سر کو کچل دیا ہوا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں اس صلیب جس کے پر جیسے کہہ لیں کہ آپ داؤد نے جب جاتی جولیت کے اس کو مار دیا تھا، اس پہ فتح پالی تھی، تو کیا اس کا سر لے لے کے وہ ہر جگہ گھومتا پھرتا تھا کہ او میں نے تو یہ نشانی ہے میری یا یہ نشان ہے میرا، تو ہے نا. اس پہ اس نے فتح پالی ہوئی تھی. وہ اس کو ہم یاد کرتے ہیں، ہے نا، اس کو لے کے نہیں پھرتے. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ صاف کہا. مل گیا بابا جہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا
जी। हाँ जी, हाँ जी। मत्ती 16 बाब उसकी 24 आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो हाँ, कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। आमीन। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी देखे हमें रूहानी तौर पे करने के लिए कहा। सलीब ना गले पे पहनने से कुछ हम बदल सकता है, ये सारे काम जिस्मानी हैं, है ना? इसीलिए खुदावंद ने रूहानी तौर पे हमें बात जो है या काम करने के लिए जो कहा कि दुखों में से, मुसीबतों में से गुज़रना है। और ये है जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह आज़माया गया और दुखों में से, मुसीबतों में से गुज़रा, और ये है सलीब, यानी सफरिंग में से जो गुज़रते हैं हम, बीमारी आ गई है, कोई तंगी आ गई है, कोई तकलीफ है, ये सफरिंग है, ये सलीब है हमारी। और हम इसको तो क्या करते हैं, जल्दी से डॉक्टर के पास भागते हैं, मिन्नो शिफा मिल जाए छेती ना या पीरों फकीरों के पास भाग जाते हैं। हम अपनी सलीब उठाना नहीं चाहते, ये है हमारी सलीब। उसको तो हम उठाते नहीं है जो खुदा यीशु मसीह ने हमें कहा। और ये सलीब जो है लोगों को दिखाते फिरते हैं कि ओ जी मेरे मत्थे ते देखो या गले ते देखो। कुछ ने तो पास्टर्स ने टैटू बनवाए हुए हैं सलीब के, खुदा यीशु मसीह के, जिससे किसी तरह भी हमारे खुदा यीशु मसीह को जलाल जो है वो नहीं मिलता। जिस्मों पे बनाने से कुछ नहीं हासिल होता, है ना? ये खाने-पीने को छोड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। जब तक आप अपने दिलों को चाक नहीं करेंगे, जब तक ये सलीब जो है आप नहीं उठाएँगे, जब दुखों में से, तकलीफ़ों में से गुज़रे, जैसे कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, अ, बड़ी तसल्ली से, इत्मीनान से या खुशी से कह लें, वो सलीब जो थी उठाई। कहीं पे भी हमने नहीं देखा कोई खुदावंद यीशु मसीह ने मुँह खोला हो और बोला हो कि खुदावंद ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया? तूने मैंने किस मुसीबत में डाल लिया? ये प्याला जो था ये मैंने नहीं पीना था, या कहीं पे भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, या उसके किसी एक्ट से ये ज़ाहिर हुआ कि वो ये जो कोड़े थे खाने, ये जो सलीब उठानी थी, या मुँह पे थकवाया था, दाढ़ी नोची गई थी कि खुदावंद यीशु मसीह पीछे हटा हो। नहीं, उसने सब कुछ सहा। ये है सलीब। और इस तरह की सलीब जो है वो हमें उठानी है कि हम जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है उसको खुशी से, जैसे कि हमने कुर्बानियों के बारे में सीखा था कि खुशी से कुर्बानी देनी है, खुशी से अपने बदनों को पेश करना है ना? जो खुशी से कुर्बानी देता है, कुर्बानियाँ जैसे हमने सीखा कि ये दुआएँ या जो कुछ भी हम खुदावंद के लिए करते हैं, ये टाइम जो निकालते हैं मीटिंग के लिए या चर्च के लिए, ये है कुर्बानियाँ, है ना? ये हैं जो हदिये नज़राने हम चढ़ाते हैं। तो अगर हम ये खुशी से कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह की तरह, तो उसका कोई जैसे कह लें कि अजर है जिसका मेरास जो है वो मिलेगी हमें, हिस्सा जो है वो मिलेगा। इसका जो ताज है जैसे कह लें, हम भी फ़तेहमंद जब होंगे तो हमें मिलेगा। तो ये जो करते हैं ये सलीब जो माथे पे लगा लेते हैं या राख अपने जैसे यहूदी लोग, इसीलिए। और टाइम हो गया लेकिन बस एक और मैं बात है, जैसे कुछ लोग इसको यहूदियों के जो रस्म-रिवाज है उससे जोड़ते हैं। लेकिन आप वो देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने बार-बार क्या फक्कियों और फरीसियों को कहा कि तुम इन फक्कियों फरीसियों की तरह रोज़ा ना रखो, तुम इनकी तरह ये ना करो, तुम इनकी तरह। तो इसलिए जो पास्टर जो हैं, जो खुदा के खादम इन सारी रस्मों-रिवाज को यहूदियों के साथ भी जोड़ के चर्चेज़ में लेके आते हैं या मसाले देते हैं या दलीलें देते हैं, तो आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन फक्कियों और फरीसियों के बारे में क्या कहा। तो इसलिए उनके साथ भी ये जो रस्म-रिवाज मिला के कलीसिया में, चर्च में लेके आते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह तो ने तो साफ उनको कहा कि तुम ये करते हो, ये वो गलत कर रहे हैं। तो इसलिए हमने उस उनसे नहीं यहूदियों से नहीं सीखना कि वो ये करते थे तो हम भी कर सकते हैं, है ना? हमें खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा है, वो करना है। और पीछे भी जो कह लें 10 हुक्मों से या उससे भी जो हम सीखते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह ने सब कुछ नहीं करने के लिए कहा। वो एक जैसे कह लें कि हमें सिखाने के लिए खुदावंद ने कहा, लेकिन वो सब कुछ जो जिस्मानी तौर पे करते थे, अब हमने रूहानी तौर पे करना है। इसलिए कुछ क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है लोगों से कि वो यहूदियों के साथ भी उसको मिलाते हैं,
रस्म और रिवाज को कि देखो वो भी तो कर देने है ना, तो हम भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें क्या कहा। तो खुदा यीशु मसीह सलीब से उतर आया हुआ है। अगर फर्ज करें पहनते भी हैं या लेते भी हैं तो खाली सलीब, लेकिन ये लोग के क्या हैं, अभी तक खुदा यीशु मसीह को सलीब के ऊपर मैं कहूँगी कि टंगाया हुआ है ना। खुदा यीशु मसीह की ऊपर मूर्ति बनी हुई है, मूरत बनी होती है। तो ये सब कुछ क्या है, ये वो ही बुत परस्ती है। वो जो नमरूद से शुरू हुई बुत परस्ती, वो ही उसको पूरा कर रही है हमारे कलीसियाओं में, हमारे चर्चों में। हमारे जो लीडर हैं वो हमें यही सिखा रहे हैं। ओ कोई गल नहीं, और कोई कर रहा है तो उसको, जो क्योंकि खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़ा हो, तो कहते ने कोई गल नहीं, तुसी ते जो मेरे जैसा कोई उठ के ऐसे सिखाने की कोशिश करता है, उसको कहते ए ते ना कुछ नहीं करन देंदा सानू या कुछ नहीं करने देते ये लोग जो हैं। तो ना खुद करते हैं ना हमें करने देते हैं। तो हमें ये नहीं करना। ये सारी रसूमात जो हैं, ये सारे तौर तरीके जो हैं, खुदावंद हमारे खुदा ने इसराइलियों को भी वहां से निकाल के ले आया, और अब हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें दुनिया में से निकाल लिया। दुनिया में सब कुछ होता है, कोई भी मजहब है, कुछ भी है, ये सारे मजहब क्योंकि निकले ही यहाँ से हैं, नमरूद से, इसलिए ये सारे इनके रस्म रिवाज हैं जो हैं, वो सब उस तरफ हमें लेके जाते हैं। लेकिन खुदावंद हमारे यीशु मसीह ने हमें क्या कहा कि हमें ये सब कुछ नहीं करना। उसने हमें अपनी इबादत के लिए चुना है, तो हम वही करें। तो इसलिए ये जो सूरज देवता है जिसको खुदावंद यीशु मसीह के साथ जोड़ा गया है, सन गॉड, ये भी नमरूद का नाम है। इसलिए ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह का, और चाँद ये जो देवी है उसका नाम चाँद भी है। तो इसके बहुत से नाम हैं हर उसमें जगह, कह लें यूनान में, मिस्र में, या और बुद्धा जो है चाइनी, ये इन्होंने अपने फर्क उसने रखे हुए हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो क्या है, ये जाके इनकी जड़ें जो हैं वो नमरूद से मिलती हैं। तो इसलिए हमें ये इनमें से कुछ नहीं करना। हमें खुदा यीशु मसीह ने जैसा रोजा रखने के लिए कहा है, हम वैसा रोजा रखें, और जब मर्जी रखें। कोई वो सीजन नहीं है कि हम जी इस, क्योंकि ये ईस्टर ही जो है वो हमें नहीं मनाना। हमें आगे चल के हम इससे पहले वो फसा पे सीखेंगे कि हमें वो एक फसा जो है, या एक खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ जो बैठ के रोटी खाई थी, हमें वो मनाना है। एक वो सिर्फ खुदा यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कहा है। तो इसलिए हमें वो ही मनाना है, वो अब भी मनाना है उस तरह से। लेकिन उसको थोड़ा सीखेंगे कि फ़र्क तरीके से खुदा यीशु मसीह ने जैसे कहा, क्योंकि यही आखिर तक, या अब्दियत में भी, या कह लें कि 1000 साल बादशाही में भी, ये जो फसा है जैसे कि वो हम मनाया करेंगे। तो इसलिए खुदावंद आप सबको अ, बरकत दे, और ये जिन बंधनों में हम बंधे हुए थे, जो कुछ हमने किया था पीछे, तो खुदावंद हम सबको इसमें से निकाले और हमें आज़ाद करे, और हम अपने ज़िंदा खुदा की, खुदा यीशु मसीह की इबादत करें रूह, बदन और जान से। तो गॉड ब्लेस यू। मंडे को हम ईस्टर के बारे में सीखेंगे। आज हमने लैंट के बारे में थोड़ा सीखा, तो मंडे को हम ईस्टर के बारे में सीखेंगे। तो बैक टू वफा, आज मैंने सारा टाइम ले लिया लेकिन मैं चाह रही थी कि इसको मतलब अच्छा 2 उसमें खत्म कर दें। जी। ओके, हम प्रेयर करेंगे लास्ट पे। कुदूस कुदूस कुदूस, आसमान और ज़मीन को बनाने वाले ज़िंदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा जितनी भी जाने खुदा आपके हुजूर आई हैं, खुदा आपके कलाम को सुना है, खुदा इस रोज़ की रोटी में से खुदा हमने लिया है, खुदा इस कलाम का जो असर हमारी ज़िंदगियों पे रहे, हम अमल करने वाले बने, और 100 गुना फल लाने वाले हो खुदा। इस कलाम को इब्लीस हम में से, हमारे दिलों में से, हम में से किसी भी तरह से छीनने ना पाए। इस कलाम की सच्चाइयाँ हमें आज़ाद करे, हर तरह की सोचों से, हर तरह की गलतियों से, हर तरह के जो पुराने बंधन थे, जो जंजीरें थी, जो कि किसी भी तरह हमारी जिंदगियों में हमारे मारूसी उसकी वजह से आ गई है। खुदा आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें दोबारा से
یہ خدا اپنی آواز پہنچائی کہ خدا ہم ان سب میں سے نکلیں اے خدا اور اپنے بندھنوں کو توڑیں یسوع کے نام سے خدا، کیونکہ آسمان و زمین پہ خدا کسی کو ایسا نام نہیں بخشا گیا خدا جس نام میں قدرت ہے خدا۔ ہم آپ کے قدرت والے نام سے خدا آج ان تمام بندھنوں کو توڑتے ہیں، اپنی زندگیوں سے خدا ختم کرتے ہیں خدا، اور آپ میں خدا ایک قدم خدا آگے بڑھتے ہیں خدا۔ خدا جو خدا آپ کی تعلیم ہے خدا، جو کہ خدا آپ کے الفاظ ہے، جو آپ کا کلام ہے خدا، وہ خدا ہمارے اندر پھلے پھولے اور خدا ہم اسی کے مطابق زندگیاں اپنی گزار سکیں خدا۔ خدا جتنے سارے خدا یہاں پہ جھکے ہیں خدا، خدا سب کو خدا اپنے لیے خدا تیار کریں خدا، تاکہ خدا سب خدا پوری ایمانداری وفاداری کے ساتھ خدا، جس طرح خدا ابراہیم آپ کے ساتھ وفاداری ایمانداری سے خدا چلتا رہا ہے خدا، اور خدا اس نے خدا تمام خدا وعدے خدا آپ نے اس کی زندگی میں پورے کیا خدا، اسی طرح ہم آپ کے تمام وعدوں کو تمام برکات کو خدا لینے والے بنے، اور خدا اپنی خدا منزل تک خدا جو نیا یروشلم خدا ہماری منزل ہے خدا اس تک پہنچ سکے خدا۔ خدا ہم آپ کے کلام کو خدا اس دنیا میں خدا پھیلانے والے بنے خدا، جیسا کہ آپ کا حکم ہے خدا کہ تم خدا دنیا میں نور بن کے چمکو خدا، اور آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ تم دنیا میں سے نکل آؤ، ان کی رسموں میں سے نکل آؤ خدا۔ خدا ہم اس میں سے خدا گناہ بھری زندگی میں سے خدا نکلنا چاہتے ہیں خدا، کوئی بھی کمی کمزوری خدا کسی بھی طرح سے خدا ہمارے اندر ہے خدا، اس کو ہم میں سے دور کریں خدا، ہر طرح سے خدا ہمیں پاک کریں خدا، پاکیزگی کی طرف خدا ہمیں بڑھنا سکھائیں خدا، ہر طرح سے خدا ہمیں کامل کریں خدا، آپ کے کلام میں لکھا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے خدا، خدا ہمیں کاملیت کی طرف لے کر جائیں خدا، خدا آپ کا خاص مسا خدا ہم سب کے اوپر ٹھہرے خدا، آپ کی ساتوں روحیں خدا ہماری زندگی میں کام کرے خدا، آپ کے خدا روح کے پھل روح کی نعمتیں خدا ہماری زندگی میں کام کرے خدا، اور خدا Yes, Lord خدا آپ Jesus. کی Hallelujah. Yes, خدا Lord. ساری روحیں خدا ہماری زندگیوں میں Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خدا۔ آج خدا ہمیں سارے بندنوں سے آزاد کرنا، بحال کرنا یسوع کے نام سے، کہیں پہ بھی ہمارے گروپ میں کسی بھی طرح سے کیسے جو ہم نے یہ کام کیے کسی بھی طرح سے خدا یہ نمرود کی اسپرٹ جو ہے ہمارے گروپ میں کام کی، ہم نے تیرے کاموں اس کے کاموں کو کیا جو کہ تیرے خلاف تھے، تو خدا یسوع کے نام سے آج ایک ایک کی زندگی سے میں کینسل کر دیتی ہوں یسوع کے نام سے۔ کہیں پہ بھی ہم نے سلیم کو خدا اس طرح سے پوجا ہے، اس کے آگے سجدے کی ہیں، یسوع کے نام سے آج ہم وہ سارے لنک جو ہیں وہ کینسل کر دیتے ہیں۔ کہیں بت پرستی کی ہے خدا، کہیں ایسے تہواروں میں ایسے رسومات میں ہم شریک ہوئے ہیں، یسوع کے نام سے خدا آج وہ سارے لنک ٹوٹ جائیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا ہم جو ایسے ایسے جگہوں پہ گئے ہیں خدا جس سے کے ساتھ ہمارے لنک جو ہیں وہ جڑ گئے ہیں، ایسے مندروں میں، ایسے خدا جگہوں میں، بازاروں میں خدا جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ لنک جو ہے وہ جڑ گئے ہیں یسوع کے نام سے خدا یہ تموز کے خدا، نمرود کے خدا یہ بت پرستی کے چاند دیوی کے خدا یسوع کے نام سے آج ان کے سارے لنک جو ہیں میں توڑ دیتی ہوں۔ گروپ کے ایک ایک ممبر کے ساتھ خدا ان کی چیزوں سے، ان کے گھروں سے خدا یسوع کے نام سے آج سارے لنک توڑ دیتی ہوں، ان کی ڈوریوں کو توڑ دیتی ہوں، کھول دیتی ہوں، زنجیروں کو کھول دیتی ہوں یسوع کے نام سے خدا وہ سارے دروازے بند ہو جائیں خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا جو شیطان نے ہمارے لیے کھولے ہوئے ہیں، کہیں کسی کچھ انجانے میں ہیں اور جان بوجھ کے کچھ ہم نے ایسے کام کیے ہیں خدا یسوع کے نام سے خدا جو خدا اس کو جلال دے رہے تھے، جو شیطان کو جلال دے رہے تھے خدا، جو نمرود کو تموز کو جلال دے رہے تھے خدا یہ دیوی جو تھی اس کو جلال دے رہے تھے یسوع کے نام سے خدا ان کے سارے لنک، ان کے سارے دروازوں کو بند کر دیتی ہوں یسوع کے نام سے، سارے لنک توڑ دیتی ہوں، سارے بندھن کھل جائیں۔ کہیں ہم نے ایسا روزہ رکھا ہے، ایسے راکھ جو ہے ہم نے اپنے سروں پہ لگائی، اپنے ماتھوں پہ لگائی جو تموز کا نشان ہے، جو تموز کی صلیب ہے خدا یسوع کے نام سے ان کے سارے لنک اپنی روح بدن جان سے توڑ دیتی ہوں، کاٹ دیتی ہوں
खुदा अपनी फैमिलियों से, खुदा यस्सु के नाम से, अपने अपने खुदा घरों से, घरों की चीजों से, हमारे कपड़ों से खुदा जुड़ गए हुए हैं, यस्सु के नाम से वो सारे लिंक तोड़ देती हूँ, ताकि खुदा हमारे बदनों से, हमारी चीजों से खुदा यस्सु तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, और खुदा तू खुदा हमारी जिंदगियों में बढ़ता जाए और हम कम होते जाए खुदा, ताकि जिस तरह खुदा यीशु मसीह तूने कहा कि तेरा मुझ में कुछ नहीं है, खुदावंद इसी तरह से हम भी ये कह सके कि खुदावंद खुदा शैतान का, ये नमरूद का, खुदावंद तमूज का, खुदावंद एस्तर देवी का हमारी जिंदगियों पे कोई असर ना हो, कोई काम इसका हम ना करते हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद खुदावंद तेरा रोब, तेरा दबदबा हमारे ऊपर एक एक पर ठहरा रहे, खुदावंद तेरे पाक लहू में हम हमेशा छुपे रहे, खुदा तेरे पाक रूह की कवरिंग हमेशा हमारे चगिर्द, हमारी चीजों के चगिर्द लगी रहे खुदा, यस्सु के नाम से जहां जहां हम जाएं खुदा वहां से बदी की कुव्वतें डरती और कांपती हुई निकले, तेरा रोब, तेरा दबदबा खुदा हमारे ऊपर ठहरा रहे खुदा, यस्सु के नाम से खुदा बदरूहें जब हमें देखें तो खुदा उनको आग लगे, क्योंकि हमारे बदन खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपे रहे हमेशा खुदा, और हम खुदा तुझ में, पाकीज़गी में खुदा, तेरी मोहब्बत में खुदा, तेरी हलीमे में खुदा तेरे ईमान में बढ़ते जाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। Amen. God bless you today. आमीन जी। God bless प्रेज you. गॉड। हमारे खुदाम यीशु मसीह को जलाल देने के लिए कहीं पे भी आपको खुदाम का पाक रूह याद कराए कि ऐसा कहीं पे भी आपने किया हुआ है, तो उसकी माफी मांगे, तौबा करें और आगे को ये ना करें ताकि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा ऊंचा हो हमारी जिंदगियों से, है ना। तो जरूर खुदावंद पाक रूह आप जो भी जितने भी ग्रुप में हैं उनके ऊपर वो मसा ठहरा हुआ है, इसलिए खुदावंद पाक रूह आपको याद कराएगा कि जो कुछ भी आपने किया है पीछे, तो फिर उसकी माफी मांगनी है, आपने तौबा करनी है कि खुदावंद ये तो सब कुछ उसका था, मैं तो खुदावंद यीशु मसीह तुझे प्यार करता हूँ, है ना, मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो मेरा ईमान है कि आज बहुत से हमारे जो हैं आज सुनेंगे तो आपके बंधन जो है हमें खुलेंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। Hallelujah. Praise the हालेलुया। Lord. हालेलुया। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट जी।